A very good morning, dear students. So, today we'll be doing English instead of SS, as we had done SS in the last week for the two sessions. Okay, that was on Tuesday and Friday. So, today we'll be doing English. We'll be doing the fifth chapter of English prose, that is Invention. Okay, so let us start with the chapter. You all are familiar with the word invention, discoveries, yes, inventor, scientist. हाँ, हमने ऐसे बहुत सारे वर्ड्स सुने हैं and all of them are related to some or the other things or ideas or concepts that they have generated or invented, we can say. Okay, for example, I will show you some pictures. You have to identify who invented what. Okay, so let us go through the pictures now. There are 2 or 3 randomly. Go through it. Light bulb by Thomas Alva Edison. Basketball by James Naismith. Telephone by Alexander Graham Bell. I hope you have gone through the pictures and understood who invented what. Some of the inventions I had shown in this video. Now let us see what the chapter has for us. Okay, activity 1. So basically an image is shown here. Okay, what you have to do is you have to look in this image. It's a kind of picture composition, but आपको यहाँ पे कोई composition नहीं लिखना है. आपको क्या करना है, यहाँ पे जो image दिया है इसमें क्या क्या दिया है उसका list down करना है. नीचे एक box दिया है उसमें. For example, you can see a building, trees, camel, a lady going. Yes, camel cart, then the wheel, then the motorbike. We can say it as motorbike. So both the two-wheelers can be included. Okay, then motor car, then the lady is having a purse, then the road, auto rickshaw, etc. Such things can be seen in this picture, which is given on the first page of the chapter, that is on page number 38. लाइकवाइज जो भी चीज़ें आपको इसमें दिख रही है उसका नाम आपको इंग्लिश में यहाँ पे दिए गए बॉक्स में लिखना है. ओके, नाउ एक्टिविटी 2. Yes, in this activity they are asked, it is beginning, the title itself suggests that, do you know who invented the light bulb? I had shown you the image कि light bulb किसने invent किया है? Thomas Alva Edison. Yes, Thomas Alva Edison or Thomas Edison, as the name goes, he is the inventor of the light bulb. ठीक है, जनरली इट इज़ दैट, हमने अब तक के जितने इन्वेंशंस के बारे में सब देखा तो उसमें ऐसा ही होता है कि कभी भी कुछ भी इन्वेंशन हो तो जो पर्सन उसमें सक्सेसफुल हुआ उसका ही नाम आता है. ओनली वन पर्सन इज रिलेटेड टू इट. बट वॉट they are saying is, the speaker of the chapter is saying is, it is not actually so. मतलब वो कहते हैं कि it is not that Edison himself or he only invented the electric bulb, but many people जिसने पहले से ही इन्वेंशन करना शुरू किया था इलेक्ट्रिक बल्ब का, ठीक है, उसका एक बड़ा सा टीम था, तो बट उनसे सक्सेसफुल नहीं हुआ. तो एडिसन ने वो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की कि वाई दीज पीपल्स इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ नॉट बिकमिंग सक्सेसफुल, वाई इज़ इट नॉट लास्टिंग long, why is it happening that it is not available at a reasonable price. So ये questions, ये जो problems थे इसका जब सॉल्यूशन ढूंढा तो ग्रेजुअली ही केम अप विद द इन्वेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब. मतलब वो एक एक प्रॉब्लम को उन्होंने सॉर्ट आउट किया जो पहले के इन्वेंटर्स जिसने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में लेके आने का, बनाने का, उन लोग ने जो प्रॉब्लम्स फेस किए उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके फाइनली थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट किया.
ठीक है. So likewise, whether the inventors are of printing press or the, that is the phone, telephone, okay, or the whichever inventions, it is not that they are the only one who is to be praised for that, but the whole many people are behind that, who have come, who had tried but they did not got successful. So these inventors who actually solve their issue, their problem, वो लोगों ने invent किया. Okay, understood? That is what the activity 2 is stating. कि they saw that what the problems the other inventors faced while inventing that particular thing. तो उसको sort out करने के लिए उसका जो problem है उसको solve करके उन लोग ने अपना invention किया. तो एडिसन ने भी ऐसे ही किया. जो inventors थे उनके इलेक्ट्रिक बल्ब में कभी वो जल्दी मतलब फ्यूज़ आउट हो जाता था और कभी कभी वो बहुत ही कॉस्टली होता था जो ईज़िली अवेलेबल नहीं होता है लोगों को. तो एडिसन ने वो सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके फाइनली ईज़िली अफोर्डेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग बल्ब्स इन्वेंट किए. ओके, understood? So what are the inventors doing? They are actually solving the problems. So inventors are problem solvers. Okay, understood? Activity 3. Here are some more famous inventions. Work with a partner or group to add 3 more inventions to the list. What are the problems that each of these inventions solved? यहाँ पे आपको 3 inventions के जो मशीन्स हैं या डिवाइस है उसके बारे में या मेडिसिन है उसके बारे में बताया है. ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि ये 3 इन्वेंशन जो हुए वो 3 इन्वेंशन ने क्या प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया होगा. दैट यू हैव टू गेस इट आउट. ओके, सो आई विल सजेस्ट one फॉर ईच. यू कैन राइट डिफरेंटली ऑल्सो. ओके, वन इज़ फॉर सीविंग मशीन. सीविंग मशीन, स्टिचिंग मशीन हम जो बोलते हैं, यस, हाँ, वो सीविंग मशीन ने क्या प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया होगा. स्टिचिंग क्लोथ्स टू फिट पीपल्स बॉडी. Yes, many a times we go to purchase the clothes. Sometimes it is very much loose for to our body, okay, or sometimes it's too tight that we cannot wear. So ऐसे cases होते, तो उस time पे if you go to a tailor, he takes the measurement, he stitches the cloth, it's properly according to the measurement. So there that problem is solved. Who solved that problem? The machine. So therefore they are saying it can be as such in order to solve such kind of problem, that is stitching of clothes to fit people's body. Again, second one, oven. अवन का क्या हो सकता है प्रॉब्लम, क्या सॉर्ट आउट किया होगा अवन ने. सो वाई डू वी यूज़ अवन? टू वार्म द फूड, यस, टू बेक समथिंग. हाँ, तो क्यों अवन का इन्वेंशन हुआ होगा, क्या करने के लिए? तो कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि वार्मिंग फूड एंड प्रिपेयरिंग सम ईटेबल्स जस्ट इन मिनट्स. सो you can warm the food easily and as well as you can cook some kind of foods within few minutes via the oven. So वैसे problems को sort out करने immediately, if you want to cook something, you want to warm up something, okay, so you can put up in the oven. So oven solves that problem. Okay, next is antibiotic. What does antibiotic solve? Preventing infections caused by different bacteria and viruses. कुछ भी बैक्टीरिया वायरस से आपको कुछ ऐसा मतलब इन्फेक्शन हुआ हो तो उसको वो इन्फेक्शन आपको ना हो, ठीक है, वो इन्फेक्शन से आपको बचाता है ये एंटीबायोटिक्स. तो एंटीबायोटिक्स क्यों इन्वेंट किए थे? ऐसे कुछ भी इन्फेक्शंस होते हैं कोई बैक्टीरिया या वायरस के थ्रू, उनसे प्रिवेंशन पाने के लिए. ठीक है, अंडरस्टूड. ओके, नाउ in that itself, individually list 3 real problems that you know about that might be solved with a new invention. अभी आपको यहाँ पे कोई ऐसे 3 इन्वेंशंस लिखने हैं जो आपको पता है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम है सोसाइटी में, दैट इज़ द प्लेस अराउंड
यू, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा आपने देखा कि प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम के लिए एक ऐसा इन्वेंशन आप सजेस्ट कर सकते हो, उसके बारे में आपको लिस्ट आउट करना है. फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू वन. स्कैरसिटी ऑफ वाटर कैन बी सॉल्व बाय कन्वर्टिंग सी वाटर इनटू ड्रिंकिंग वाटर. ठीक है, पानी का जो प्रॉब्लम है, सम पीपल आर नॉट गेटिंग इनफ वाटर, सो हाउ कैन वी सॉर्ट आउट? वी कैन एक्चुअली कन्वर्ट द सी वाटर इनटू द ड्रिंकिंग वाटर. तो हम उसको वो जो प्रोसेसिंग है प्योरीफाइंग का, वो करके ऐसे प्योरीफाइबल ड्रिंक बना सकते हैं. सी वाटर को नॉर्मल वाटर में कर सकते हैं कन्वर्ट. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव सजेस्टेड वन. लाइकवाइज आपको और 2 सजेशंस देने हैं, या यू कैन राइट अनदर one more. Okay, you have to give 2 suggestions about some problem and how can we sort it out. ठीक है, यहाँ पे स्कैरसिटी ऑफ वाटर था, वैसे आप कुछ सोच सकते हो कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम क्या सोल्यूशन कर सकते हैं. ठीक है, दैट विद दैट सोल्यूशन यू हैव टू मेंशन इन दिस टेबल. ओके, डू दैट. आफ्टर डूइंग दैट आप 3 लिस्ट डाउन कर लो. उसके बाद आपके फ्रेंड्स को भी पूछो कि उन लोग ने क्या क्या किया था. फिर आप लोग सभी का ऐसे लिस्ट डाउन करो 1 2 3 4 5 ऐसे ऑर्डर में. ठीक है, you can ask your friends that what they have given the what problem they found and what the suggestions they are giving. उनका भी पूछ के और 2 ऐड कर लो. वैसे 5, all the 5 you have to list down. 3 you have already written, 2 from your friends. Okay, understood? Do it. Activity 4. Yes, now what the first line of the activity saying is, you don't need to be famous to invent something. You don't even need to grow up. You just need to see a problem, think of a new way to solve it. ठीक है, मैनी ये टाइम्स हमने देखा है कि हाँ इसका इन्वेंशन तो बड़े किसी ने किया है, तो हम बड़े होंगे तब इन्वेंशन करेंगे. जनरली हमारे मन में ऐसे आता है ना. बट ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, एट दिस एज, ये एज में भी आप इन्वेंशन कर सकते हो. यू आर केपेबल, सो यू कैन डू इट. वी हैव अ स्टोरी हियर, दैट इज स्मार्ट बॉय इन्वेंट्स स्मार्ट बेल, part 1. We'll be discussing both the parts of the story together. Okay, so activity 4 and 7 will be covered together. So let us see what the story has. देखते हैं कि क्या हमारा स्मार्ट बेल बताता है. So newspaper report June 2011, England, UK. Okay, so basically the story is about an invention of smart bell by a teenage boy. Okay, a small teenage boy around the age of 13 years. Okay, his name is Lawrence Rook. He is a British boy. Okay, British school boy, and yes, and he is from southern England, and he is famous for the invention of smart bell. Yes, स्मार्टफोन्स हमने सुना है, ये स्मार्ट बेल है. He by this invention he earned up to 20.5 lakh rupees. And the best thing about this bell is कि burglars होते हैं या thieves होते हैं, चोर होते ना, उन लोगों को भगा देता है ये बेल. अब इसमें ऐसा क्या है? जनरली बेल्स क्या करते हैं, जब कोई बाहर से आता है दे टिंग टोंग, they ring the bell. Yes, and at that time if somebody is inside the house, they come up to the door, they open the door to see who is it. Yes, correct, यही होता है डोर बेल. बट सपोज अगर आप घर पे नहीं हो और किसी ने डोर बेल बजाया, तो डेफिनेटली कोई आंसर नहीं मिलेगा, तो जो विजिटर आया वो चला जाएगा. लेकिन अगर थीफ आया हो उसकी जगह, उसने डोरबेल बजाया, ओके, कुछ आवाज़ नहीं आया, दैट मीन्स ही अंडरस्टूड नोबडी इज़ एट होम. एंड एट दैट टाइम, ओके, यूके में उस टाइम पे ऐसा होता था. Burglars used to attack the house, they used to rob the house and everything of the people. So when nobody was there at home, therefore this
smart bell became a solution for the same. As we know, inventions are nothing but the solutions to the problems. Therefore, we got this smart bell created by a smart boy named Lawrence Rook who solved this problem. Now, how does it work? About its mechanism, let us see. So, again, the report continues on page number 42. It says that when the smart bell is pressed, it waits 10 seconds to see if the home owner answers. ठीक है, जो house owner है, the one who is at the house, when somebody rings the bell. Yes, continuing with the story on page number 42, activity 7, part 2. So what it is, how does the smart bell works? Let us see that. So what they are saying is, when somebody pokes or presses the smart bell, वो पहले बेल रिंग होगा नॉर्मल बेल की तरह, 10 सेकेंड्स तक वो बेल वेट करता है कि कोई घर पे है जो उस बेल को रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं. ठीक है, वंस आफ्टर द 10 सेकेंड्स अगर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, वॉट डज द स्मार्ट बेल विल डू? इट इज़ स्मार्ट, सो इट विल कॉल द ओनर ऑन देयर मोबाइल फोन एंड द ओनर और द वन okay who lives in that house, they can talk to the visitor who is at the door. ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, जो विजिटर है वो डायरेक्टली फ़ोन पे बात कर सकते हैं जो आए हैं, भले ही ओनर घर पे ना हो. तो उनको ऐसा लगेगा कि दैट पर्सन इज़ देयर. इट विल बी हर्ड एज इफ दे आर टॉकिंग. ठीक है, ऐसा नहीं कि उनको फ़ोन जाएगा, वो बात कर रहे वैसे ही सुनाई देगा. एंड इसमें इनबिल्ट सिम होता है. ठीक है, जिससे ये कॉलिंग वगैरह टेको से भी है. ओके, एंड इसमें थोड़ा सा वाइट नॉइसेस भी क्रिएट किया है ताकि वो नेचुरलिटी आ जाए ना उनके टॉक में, उनको लगे ना कि जो द वन हु इज़ लिजनिंग, दे मस्ट नॉट फील दैट दे आर टॉकिंग टू समवन ऑन द फोन. तो वैसे हल्का नॉइसेस क्रिएट किया है जिससे द पर्सन एट द डोर विल थिंक ओके द पर्सन इज़ इनसाइड एंड इज़ टॉकिंग टू me. Okay, the white noise makes the smart bell sound like the owner is inside the house talking on an intercom. Okay, the white noise doesn't sound like a mobile phone, so the visitor cannot tell the owner is not at home. Yes, वो मोबाइल फ़ोन की तरह बिल्कुल नहीं लगेगा, नॉर्मल की तरह ही बात सुनाई देगी, तो उनको कंफर्म नहीं होगा कि वो घर पे है या नहीं है. ठीक है, हाउ डिड लॉरेंस गॉट दिस आइडिया? So what is that, actually his mother told him that many a time it happens now, you are not at your home, suppose some parcel comes, so it will create a problem, फिर उसको ढूंढो जाओ, that all is a great issue. तो वैसे वो डिलीवरी प्रॉब्लम होता है. ठीक है, तो वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए लॉरेंस ने ये इन्वेंट किया. देन ग्रेजुअली व्हेन ही ट्राइड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द थीफ, द burglary, the robbery going on, what he thought that he will modify this and will make something which will protect the house if the owner is not at house. Okay, so the burglar will not completely know whether the house is empty or not. ठीक है, तो इस तरीके से वो डिज़ाइन किया. देन लॉरेंस को स्मार्ट बेल का आइडिया आया तो उन्होंने उसका सब ड्राफ्ट ड्राइंग वगैरह स्केच आउट किया था. ठीक है, एक्चुअली एक स्टूडेंट इन्वेंशन कॉन्टेस्ट था, उसके लिए उन्होंने डिज़ाइन किया था. ठीक है, लॉरेंस थॉट ऑफ प्रॉब्लम ही न्यू एंड दैट कुड बी सॉल्व्ड विथ इन्वेंशंस. ही ड्रू डिज़ाइंस टू शो हिज आइडियाज़. ठीक है, तो जो भी ऐसे इन्वेंशंस होते हैं, यस, सो ही अगेन लॉरेंस ही थॉट ऑफ द प्रॉब्लम that how could this problem be solved, and gradually he reached the solution and he brought something new out of it. Okay. A family friend of Lawrence helped him to send his design to China. Okay, and within less than 12 months the model was made up and the invention has been done completely. Okay, understood? So that is what the story describes about smart bell. When you're not at your home, the smart bell will answer and safeguard your house. Yes. Now come to page number 41. There is an activity given, activity 5. It's a table
ठीक है। टेबल के फर्स्ट कॉलम में आपको बोला है कि आर ग्रुप लिस्ट प्लस लॉरेंस प्रॉब्लम एंड या साइमल्टेनियसली यू हैव टू रैंक इट ऑल्सो। ओके, व्हाट यू विल डू इज, आपने एक्टिविटी 3 में जो किया जिसमें था आप लोग ने पहले तो लिस्ट डाउन किया 3 प्रॉब्लम्स और उसके लिए क्या सोल्यूशन कर सकते हैं, जिसमें मैंने एक सजेस्ट किया था कि जो वाटर है, ठीक है, स्केर्सिटी ऑफ वाटर का जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो सी वाटर है उसको हम प्योरीफाई कर सकते हैं नॉर्मल वाटर में। ठीक है, वो एक प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन था। सेकंड, आप ऐसे ही कुछ इन डिवाइस के बारे में बता सकते हो जिसमें ड्रीम्स रिकॉर्ड होते हैं। ओके, थर्ड, सपोज कोई प्रॉब्लम आप बताना चाहते हो जिसमें यू वांट टू इन्वेंट अ रोबो। ओके, यू वांट टू हैव अ रोबोट हु विल हेल्प यू इन डूइंग ऑल द वर्क्स। ठीक है, जो भी हार्ड टास्क है वो इजीली वो करके देता है, वैसे एक रोबो चाहिए आपको। तो आप ऐसे 3 सजेशन सपोज आपने ढूंढे और 2 सजेशंस आपके फ्रेंड्स ने आपको बताया जब नेक्स्ट एक्टिविटी में आपने किया था, एक्टिविटी 3 में ही, है ना। तो टोटल 5 आपको वैसे मिल गए। हाँ, वो 5 यहाँ पे लिस्ट डाउन करना है आपको पेज नंबर 41 में। स्टिल एक और कॉलम एक और रो बच जाता है। वो क्यों? वहाँ पे आप क्या डालोगे, वहाँ पे आप वो मेंशन करोगे जो लॉरेंस का प्रॉब्लम था रिगार्डिंग द डोर बेल सेफ्टी इफ़ द ओनर इज़ नॉट एट होम। ठीक है, तो वो आप लास्ट में ऐड करोगे। सो टू इन टोटल विल बी हैविंग 6 प्रॉब्लम विद द सॉल्यूशंस। ओके, एंड साइमल्टेनियसली एक और कॉलम दिया है सीरियसनेस रैंक। अभी मैंने सपोज लिस्ट डाउन किया, फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने लिखा कि ड्रिंकिंग वाटर स्कैर्सिटी, सेकेंड प्रॉब्लम मैंने लिखा रिकॉर्डिंग ऑफ ड्रीम्स, थर्ड प्रॉब्लम मैंने लिखा रोबोट, फोर्थ प्रॉब्लम मैंने लिखा मैजिक फ़ोन विथ नो सिम कार्ड, फिफ्थ मैंने लिखा सपोज रिगार्डिंग ओके एनी क्रीम विच विल हेल्प इन गेटिंग रिकवरिंग फ्रॉम एनी वुंड। ठीक है, कुछ भी आपको लगा हो बस वो क्रीम लगा दिए, एक दिन में ठीक हो गए, वैसा कुछ क्रीम। एंड लास्ट आई विल मेंशन दैट लॉरेंस डोरबेल प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि इसमें से कौन सा प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, मतलब इम्पॉर्टेंट लग रहा है, तो वो ड्रिंकिंग वाटर का है, तो मैं उसको प्रेफरेंस 1 दूंगी, रैंक उसको मैंने 1 दिया। ठीक है, उस तरीके से फिर मेरे को लगा कि डोरबेल वाला प्रॉब्लम दूसरा है तो मैंने उसको सेकंड दिया, थर्ड मैंने, ऐसे आपको रैंकिंग करना है ये टेबल में जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसको। ओके, अब रैंकिंग करने के बाद व्हाट यू विल डू इज ऑन द वेरी नेक्स्ट पेज, ऑन पेज नंबर 42 देयर इज़ अ ब्लैंक गिवन, वी रैंक लॉरेंस प्रॉब्लम नंबर। मैंने लॉरेंस का प्रॉब्लम नंबर क्या लिखा बोला था, सेकेंड बोला था, तो मैं लिखूंगी 2। वी थिंक दैट लॉरेंस प्रॉब्लम इज़ द सेकेंड मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम ऑन द लिस्ट। अगर आप सेकेंड में लिख रहे हो तो सेकेंड, फिफ्थ में लिख रहे हो तो फिफ्थ, सिक्स्थ में लिख रहे हो तो सिक्स्थ, दैट यू विल मेंशन देयर। Okay, understood? That is what is there in activity 5. Activity 6. Okay, so what is activity 6? आपने एक बार activity 5 में जो ऊपर blank दिया है पेज नंबर 42 में वो कर दिया। ठीक है, लॉरेंस के प्रॉब्लम को मैंने कौन सा रैंक दिया था, सेकेंड। यस, तो आप आपके हिसाब से भी रैंकिंग दे सकते हो। ठीक है, एंड उसके हिसाब से विल डू दिस टेबल। इन एक्टिविटी 6 दे आर गिवन 3 कॉलम्स। इन द फर्स्ट दे आर सेइंग अ रैंक फॉर लॉरेंस प्रॉब्लम। ओके, सो वी हैव गिवन सपोज सेकेंड रैंक, आई विल राइट देयर सेकेंड। ओके, नंबर ऑफ लिस्ट्स इन आवर क्लास दैट रैंक लॉरेंस प्रॉब्लम हायर देन आवर्स। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने लॉरेंस के प्रॉब्लम को फर्स्ट रैंक दिया है, क्योंकि मैंने सेकंड रैंक दिया तो मेरे को फर्स्ट ही देखना है कि ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने डिसाइड किया कि ओके लॉरेंस के प्रॉब्लम को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए। वो सपोज़ आपने 6th रैंक दिया है लॉरेंस के प्रॉब्लम को, तो आपको ऐसा ढूंढना है कि ऐसे कितने बच्चे जिन्होंने 1 to 5 रैंक दिया है लॉरेंस के प्रॉब्लम को, वो काउंट करके आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम, नंबर ऑफ लिस्ट
in our class that rank Lawrence problem lower than ours? ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने लॉरेंस के प्रॉब्लम को हमसे भी नीचे समझा? फॉर एग्जाम्पल आपने सेकेंड रैंक समझा लेकिन 6 है टोटल, तो सपोज़ लॉरेंस के प्रॉब्लम को आपके क्लासमेट ने 4th रैंक दिया, किसी ने 6th रैंक दिया, तो वो लोग आपके जो रैंकिंग से तो नीचे ही है ना, तो आपको गिनना है ऐसे कितने हैं जो आपके रैंकिंग से नीचे है, एंड दैट डेटा यू विल एंटर हियर. ओके, सो फर्स्ट जो आपने एंटर किया रैंक फॉर लॉरेंस प्रॉब्लम, वो आप फर्स्ट ब्लैंक में लिखोगे. सेकेंड ब्लैंक में लिखोगे सेकेंड ब्लैंक में लिखोगे कि कितने लोग हैं जिन्होंने लॉरेंस के प्रॉब्लम को आपके रैंक से भी हायर समझा, और थर्ड में लोअर. जो आपको 3 टेबल में जो 3 डेटा डालोगे वही 3 डेटा ऑर्डर में यहाँ पे भी डाल देना है. Okay, so that is done. Okay, activity 8 on page number 44. There is an image given, okay, of how does the smart bell looks as a design form. ठीक है, पहले हम कोई भी मॉडल बनाते हैं, ठीक है, कोई भी मशीनरी या कुछ भी चीज़ का, फर्स्ट वी ड्रॉ अ डिज़ाइन ऑफ दैट, एक आउटलाइन क्रिएट करते हैं. ठीक है, तो लॉरेंस ने भी ऐसा एक डिज़ाइन क्रिएट करके चाइना को भेजा था, एंड देन दे मेड अप अ डिवाइस अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन, एंड दैट टू विद इन 12 months. ओके, बना के फिर दे इन्वेंटेड, मीन्स दे गेव अप द मॉडल ऑफ smart bell. Okay, now what you have to do is, after you all know what the story is, अब आपको क्या करना है, इसमें ये जो स्मार्ट बेल है इसके कोई भी 3 यूज़र्स आपको लिस्ट डाउन करने हैं. एनी 3 यूज़र्स, वो आप ये बॉक्स में लिख सकते हो. ठीक है, कोई भी 3 यूज़र्स बताओ ये स्मार्ट बेल को यूज़ करने का. पहला तो हमको पता है कि थीफ वगैरह से बच सकते, उसके अलावा और क्या 3 है वो आप सोचो और आप मेंशन करो. ठीक है, हाउ मैनी थिंग्स डज स्मार्ट बेल डू, क्या क्या काम स्मार्ट बेल कर सकता है, और हाउ इज़ इट यूज़फुल टू यू, क्या क्या काम कर सकता है उसका लिस्ट बनाना है, एंड यू विल राइट इन दिस बॉक्स. ओके, बाकी कुछ भी इसमें एक्टिविटी अब नहीं करना है. एक्टिविटी 8 में इतना ही करना है. ओके, लेबलिंग कुछ भी नहीं, नो नीड टू ड्रॉ द डायग्राम, कुछ भी नहीं करना है. जस्ट लिस्ट डाउन करो कि और किस तरीके से हम स्मार्ट बेल को यूज़ कर सकते हैं. ओके, activity 9 on page number 45. Now whenever the word invention comes to our mind or discovery, the very first thing that comes to our mind is क्या चीज़ इन्वेंट किया, चीज़ है ना, हम हमेशा वही सोचते हैं. हम उसको कोई मशीन के साथ रिलेट करते हैं या फिर कोई मेडिसिन के साथ. वी आर वेटिंग फॉर द वैक्सीन ऑफ कोरोना, येस, सो लाइकवाइज हम ऐसे अलग अलग मेडिसिन्स या वैक्सीन या कुछ ऐसे मोडम या कोई डिवाइस के बारे में सोचते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेंशंस. लेकिन देयर आर इन्वेंशंस और डिस्कवरीज विथ रिस्पेक्ट टू आर्ट, आर्किटेक्चर, एक्सेट्रा. Okay, and that can be related to the invention of some new kind of words, some grammar topics, okay, some random concept regarding framing of sentences, etc. ठीक है, तो you all know about the prominent playwright William Shakespeare. Yes, famous for the very famous for certain plays. He has written many plays. ठीक है, play लिखा है उन्होंने, जैसे कि रोमियो जूलियट, then Hamlet, Macbeth, okay, Midsummer Nights, ये सब उन्होंने लिखा हुआ फेमस प्ले राइट है उनका. यू कैन गो थ्रू देम ऑन द इंटरनेट. सो ही ऑल्सो इन्वेंटेड मैनी कंपाउंड वर्ड्स. कंपाउंड वर्ड्स मतलब दो अलग अलग वर्ड को जॉइन करके उन्होंने एक वर्ड बनाया. उसका एक पूरा लिस्ट दिया है यहाँ पे. जस्ट लेट अस गो थ्रू इट. बेडरूम, downstairs, farmhouse, moonbeam, school boy, birthplace, eyeball, leapfrog, roadway, watch dog. इसमें देखना आप हर एक वर्ड जो है वो 2 वर्ड से बना है. जैसे कि वॉच डॉग है, उसमें वॉच भी है, डॉग भी है. स्कूल बॉय, स्कूल इज़ देयर, बॉय इज़ देयर. मून बीम, मून इज़ देयर, बीम इज़ देयर,
एक्सेट्रा। सो ऐसे जो सिंपल वर्ड्स है, दो सिंपल वर्ड्स को साथ में ज्वाइन करके एक अलग वर्ड क्रिएट किया है हमारे विलियम शेक्सपियर ने। ठीक है, तो उसके बारे में मतलब हमेशा इन्वेंशंस जो है वो डिवाइस या ये नहीं, कभी कभी लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हो सकते हैं जो हम इन्वेंशन के पार्ट में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। एक्टिविटी 10, what you will do is you have to invent a word right now। अब आपको खुद का एक वर्ड इन्वेंट करना है। मैं आपको एक सजेस्ट कर सकती हूँ, आई हैव इन्वेंटेड द वर्ड टेबल क्लोथ। ठीक है, वन वर्ड इज टेबल, अनदर वर्ड इज क्लोथ, जो दोनों को ज्वाइन करो तो टेबल क्लोथ। तो मैंने ब्लैंक में लिखा टेबल क्लोथ एंड आई हैव मेड फ्रॉम द टू वर्ड्स टेबल एंड क्लोथ। वॉट यू विल डू इज़ आपको फिर उसके ऊपर 4 सेंटेंसेस लिखना है जिससे आपके फ्रेंड्स या कोई भी वो रीड आउट करे तो वो समझ सके कि टेबल क्लॉथ क्या है। ठीक है, सो अंडरस्टूड। आफ्टर दैट फर्स्ट यू इन्वेंट अ वर्ड। वो वर्ड इन्वेंट करने के बाद आपको सेंटेंसेस बताना है जिससे लोग बता सके कि टेबल क्लॉथ या जो भी आपने वर्ड इन्वेंट किया उसका मीनिंग क्या है एक्चुअल। ओके, so that is what is there in activity 10. So here we come to the end of the unit. Okay, do the activities as I have explained you in the video and regarding hard words and word meanings that I will send you. Okay, have a nice day.